right? Now reflexive pronouns alone cannot be used as a subject of the sentence. Reflexive pronouns को अगर आप अकेले as a subject use कर रहे हो, that is not correct grammatically. Spoken में तो समझ आ रहा है, myself can do it, myself can go there, himself will do it, but this is not correct in grammar. We have to use the noun or pronoun for which this reflexive pronoun is used for. जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया है, अगर वो इसके साथ में लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब इन्हीं प्रोनाउंस को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं? Because these pronouns help us to emphasize. These pronouns help us to emphasize on the subject. Emphasize on the subject means उसका महत्व बढ़ाने के लिए, उसकी importance बढ़ाने के लिए हम लोग reflexive pronouns का use करते हैं. Now these are also known as emphatic pronouns. इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? Emphatic pronouns भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन. पहले मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अकेला हम लोग एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते. यहां हम लिख रहे हैं आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन. दैट इज गिविंग मोर एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट. किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देके बताने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं. He himself came to see the patient. He himself came to see the patient. So ये देख के घबराना नहीं कि अगर आपको लिखा हो सेंटेंस में कि कन्वर्ट द सेंटेंस यूजिंग emphatic pronouns. Emphatic pronouns are the reflexive pronouns only. They are used to give more emphasis on the subject. They are used to give more emphasis on the subject, right? But alone these pronouns are never used as a subject of the sentence. I hope this is clear to everyone. Right. Now come to the next type. That is demonstrative pronoun. Now what is demonstrative pronoun? Demonstrative pronouns क्या होते हैं? जिन प्रोनाउंस को हम लोग किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए यूज करते हैं, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. और वो कौन कौन से हैं? दिस, दैट, these, those are demonstrative pronouns. Are demonstrative pronouns. They are used to point out the object to which they refer. जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रोनाउंस यूज करते हैं, दे आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर. दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर. That is the Taj Mahal.
These are books. These are the books I found in the bag. That is my house. Right. Now these are the demonstrative pronouns. सिंगुलर के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, जो नियरर ऑब्जेक्ट है उसके लिए दिस यूज किया जाता है, और जो हमारे से दूर है उसके लिए दैट प्रोनाउन का यूज करते हैं. जो प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है. ये तो सबको पता ही है. नाउ दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Next type is interrogative pronoun. Next is interrogative pronoun. Interrogative pronouns क्या होते हैं? The pronouns that are used for asking questions. जिन pronouns को हम लोग questioning के लिए use करते हैं, they are interrogative pronouns. The pronouns used for asking question or for making queries are interrogative pronouns. Right. I hope this is clear to everyone. अब कौन से हैं आपके interrogative pronouns? WH family. WH family is interrogative pronoun. अब WH family में क्या क्या है? What, when, where, why, whose, whom, which, how. These are interrogative pronouns. These are interrogative pronouns. अब आपको लग रहा होगा कि ये अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है तो जो हम लोग इंटरोगेटिव के लिए और वर्ड्स को यूज करते हैं जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड या कोई ऑक्सिलरी विल, शैल, शुड, but they are not interrogative pronouns. They are used for asking questions but they are not interrogative pronouns. क्योंकि हम लोग अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये WH फैमिली के जो प्रोनाउंस हैं they are interrogative pronouns. Now look at the examples. What is that? Who is he? Where is my bag? Which is your pen? अब आपको एग्जाम में ये चीजें नहीं आएंगी कि आपने व्हाट कब यूज कर रहे हैं, हु कब यूज कर रहे हैं, हु का मतलब क्या है, ये नहीं आएगा. आपको एग्जाम में क्या आएगा कि हु जो है दैट इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ओनली. हु इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. whom is always used as a object of the sentence. Which is used for non-living things and animals. Whose is used to show possession. Whose is used to show possession.
नाउ विच जो है हम लोग कह रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बट विच कैन बी यूज फॉर पर्सन एज वेल। पर्सन के लिए कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज सिलेक्शन। जब हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पर्सन्स के लिए भी हम लोग विच का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज विच के लिए, विच किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? विच सिर्फ हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। नाउ लुक एट द एग्जांपल जिसमें आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ हु इज योर फ्रेंड, मीन्स आपका फ्रेंड कौन है। इसका मीनिंग क्या है? आपका फ्रेंड कौन है। तो यहाँ हु जो है दैट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ना इसी सेंटेंस के एक और सेंटेंस देखते हैं। whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हो? अब इससे मिलने वाला कौन है? सब्जेक्ट इसका कौन है? ये, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यू आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जिससे आप मिलना चाहते हो, जिसके लिए बात हो रही है कि whom do you want to meet, that is the object of the sentence, and whom is used as a object of the sentence. सेंटेंस के स्टार्ट में लिखने से ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन रहा। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यू। यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड whom is used for the object of the sentence. Now look at the other example. Who is your friend means आपका फ्रेंड कौन है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं which is your friend in the class, मीन्स इन सभी लड़कों में आपका फ्रेंड कौन सा है। विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन, एंड विच मीन्स कौन सा। इन सभी में आपका फ्रेंड कौन सा है। तो देयर इज सिलेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स कि इन सभी बच्चों में आपका फ्रेंड कौन सा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और कई बार सेंटेंस में होता है व्हाट इज योर फादर। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपके पिताजी क्या है। इसका मीनिंग होता है कि व्हाट डज ही डू, वो क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज योर फादर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हु इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, whom is used for the object of the sentence, and which is used for non-living things and animals, which can be used for persons when there is selection. मैम विच इज योर फ्रेंड इन द क्लास में सब्जेक्ट कौन सा है मैम? विच क्या है उसमें मैम? Now let's start. Next type is relative pronoun. अब रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या काम करता है। ये क्या करता है? ये दो सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन को आपस में रिलेट करता है। ये काम करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun refers to some noun or pronoun going before, which is called
antecedent, which is called antecedent. And it is advisable, it is always advisable that relative pronoun should be used next to the noun or pronoun it is used for. जिसके लिए इसको यूज किया जा रहा है उसके इमीडिएट बाद ही इसको लिखा जाना चाहिए, अदरवाइज देयर माइट बी सम कंफ्यूजन। अब जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वही हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, I know Sarla who has just gone out। अब यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा who। who किसके लिए यूज किया आपने? सरला के लिए। तो सरला इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसलिए हमने who प्रोनाउन का यूज किया है, who रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, राइट। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखते हैं। I have found the bag which I lost yesterday। Which I lost yesterday। So this which is used for this bag। जिसके लिए इस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया जा रहा है वो उसके इमीडिएट बाद ही आता है। और क्लॉज तो आपको मैंने बताया था कि क्लॉज क्या होता है। एवरी क्लॉज इज हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है, उसी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन। And relative pronoun is always used next to the noun or pronoun it is used for। जिस noun या pronoun के लिए इसे यूज किया जा रहा है उसके इमीडिएट बाद ही इसको लिखा जाना चाहिए। Now look at the next example। This is the magazine that she gave me। This is the magazine that she gave me। He is the boy whose father is MLA। Whose father is MLA। तो यहाँ whose किसके लिए यूज किया हमने? बॉय के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The boy whom you met on the road is my cousin। The boy whom you met on the road is my cousin। अब यहाँ whom क्या है? किसके लिए यूज किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। और सब्जेक्ट क्या है? ये you is the subject and boy is the object of the sentence, इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया है, दैट इज whom। तो ये आपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट शुड बी यूज्ड next to the noun or pronoun it is used for। next to the noun or pronoun it is used for। जिस noun या pronoun के लिए इसे यूज किया जा रहा है उसके इमीडिएट बाद ही इसे लिखा जाना चाहिए। I hope this is clear to everyone। चलिए जी, एक सेंटेंस देती हूँ मैं आपको, आप ठीक करिएगा इसे। The boy is my cousin who stood
first in the class. चलिए जी, टिक करिए सेंटेंस को. Now, the boy who stood first in the class is my cousin. Relative pronoun should be placed as near as possible to its antecedent, right? Now, that जो है, that can be used as a subject or object of the sentence. Can be used for the object and subject of the sentence. अगर आप that को subject के लिए use कर रहे हो तो वो कैसे होगा? The bag the example is the bag that is there is yours. और एज ए ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे इसको? द बैग दैट आई फाउंड yesterday is hers. तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या किया है? दैट को सब्जेक्ट के लिए भी यूज किया है, यहाँ दैट को हमने किसके लिए यूज किया है? सब्जेक्ट के लिए. बैग हियर इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट and here that is used for the object of the sentence. Here bag is the object and subject is I. I hope the difference is clear to everyone. That can be used for the subject of the sentence and that can be used as an object of the sentence. That को हम लोग as a subject भी use कर सकते हैं और as a object भी use कर सकते हैं. But दोनों sentences में that जो है वो क्या है? Relative pronoun. In both the cases, that is used as a relative pronoun. Right. Now come to the next part. Next is indefinite pronoun. अब indefinite pronoun जो है वो क्या है? That do not stand for a particular person or thing. किसी particular person या किसी particular चीज के लिए जो pronouns use किए जाते हैं, किसी particular person या चीज को point out नहीं करने वाले pronouns को क्या बोला जाता है? Indefinite pronouns. और वो कौन कौन से हैं? Someone, somebody, anyone, anybody, anything, none, nothing, everything, everyone, one, no one, nobody, etc. Are indefinite pronouns. Are indefinite pronouns. Because they do not stand for a particular person और थिंग. किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज के लिए इन प्रोनाउंस को यूज नहीं किया जाता. ये जब आप जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो तभी हम लोग इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
someone has stolen my watch. Someone has stolen my watch. Here you are not pointing out to a particular person. You are giving a general statement कि किसी ने मेरा बैग, मेरी वॉच चुराई है. Some passengers were injured. Some passengers were injured. Anyone can do this. Anyone can do this. Next is one must respect one's parents. One must respect one's parents. Now these are the indefinite pronouns because they do not stand for a particular person or thing. किसी particular person या चीज के लिए इनको use नहीं किया जा रहा. For giving a general statement we use the pronouns indefinite pronouns. I hope this is clear to you. बस एक हमारा लास्ट रहता है, इसकी टाइप जो है वो हम लोग कल करेंगे, आगे कंटिन्यू विद सम रूल्स करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत.